So welcome to another video of Instant Football Talks, your home of football reviews. So guys, today we will talk about some Premier League news, some title contenderships in the Premier League, how it has changed, and then we will go on to Liverpool versus Tottenham match. So first we'll focus on the Premier League news. So guys, as you know, कि अगर आपको पता नहीं है कि Premier League is like thinking to suspend itself for around 10 to 15 days so that clubs can get their players back, and mainly because of the COVID-19 outbreak. So basically, there are two Premier League matches which need to be rearranged as it stands, but that number could rise in the next few weeks due to the spread of Omicron virus. As you all know, Omicron is spreading like very dangerously in Europe, and as you know, by health is over football, and we need to consider health of the players as well. So that's why Premier League is thinking to be suspended for 10 to 15 days. But 5 weekend fixtures on top of Leicester's match at home to Tottenham on Thursday are the latest casualties on the schedule. Guys, despite the Premier League initially refusing postponement requests from the clubs for the latter earlier in this week, Burnley's game with Watford called off on Wednesday night with the outbreak of Manchester United also saw their Tuesday fixture at Brentford postponed. And that's how it is. Guys, the situation is very delicate right now Premier League में, as you can see, because अगर आप Premier League में देखोगे only 68% of the players are vaccinated, and at the other clubs it a rate is 90% or higher, and that's why you can see the consequences that Premier League is now on the verge of postponement. And while the other leagues are continuing as it is, only Premier League is facing the difficulties in the COVID-19 outbreak this time. But there is a delicate situation in Europe. Omicron is spreading very dangerously, and it needs to be controlled, and players need to be safe. And that's why it's a good move. Because अगर आप players को मतलब बचाना चाहते हो और फैंस को भी बचाना चाहते हो, मेनली फैंस ही रहेंगे क्योंकि अब फैंस को तो अलाउ कर दिया है स्टेडियम में, एंड इफ यू वांट टू सेव देम और make them feel safe, firstly you need to get them fully vaccinated. Firstly, a priority should be players and working staff in your club. एंड आई थिंक पोस्टपोनमेंट विल बी अ बेटर आइडिया. ये पहले ही कर देना चाहिए था. मुझे ये नहीं पता चला कि इन्होंने ये वीक में भी क्यों गेम खिलाया. ये वीक में भी गेम नहीं खिलाना चाहिए था इन्हें. दिस वीक शुड बी पोस्टपोन्डेड. और यहाँ से मतलब हमें कुछ अलग भी टीम दिख सकती है, इस ब्रेक के बाद दिख सकती है. वो आज बात होने वाली है, आज हमें मालूम पड़ेगा, आज या कल में मालूम पड़ जाएगा कि कब तक पोस्टपोन होने वाला है. एंड इफ़ इट गोज़ वेल, मतलब अगर सब क्लब्स की बैठक अच्छी रही और अपने कैप्टन से अच्छे से मतलब डिसीजन ले लिया एक साथ, तो ये हो सकता है कि हमें अगले साल ही देखने मिले प्रीमियर लीग फिलहाल तो. बट बात करें हम पोस्टपोनमेंट की, अगर उसमें कुछ टीम्स हस्तक्षेप ना करें अपने लेकर, तो हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज सम टीम्स लाइक लिवरपूल आर नॉट कंसिडरिंग पोस्टपोनमेंट बिकॉज फर्स्टली दे आर इन अ गुड मोमेंटम, एंड सेकेंड जनवरी में एफकॉन होंगे, और अगर एफकॉन होंगे यू नो अफ्रीकन प्लेयर्स को जाना है, और लिवरपूल में सबसे ज़्यादा अफ्रीकन प्लेयर, सबसे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मतलब जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है यू नो मोहम्मद सलाह, माने, दे विल गो फॉर एफकॉन. और खबर ऐसी ऐसी भी आई है कि एफकॉन विल बी पोस्टपोन्डेड, बट इट इज़ नॉट लाइक yet and we don't count it out. So यहाँ पर डिफिकल्टीज हो सकती है, मतलब लिवरपूल के और जो टीम्स होंगी मतलब प्रीमियर लीग में जो अफ्रीकन प्लेयर्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो उन्हें तकलीफ हो सकती है. सो दे आर अपोजिंग टू एक्सटेंट कि आर प्लेयर्स विल बी गॉन बाय जनवरी, सो वी विल फेल शॉर्ट इन द कंटेंडरशिप, सो हाउ विल बी मैनेज. सो ये सब उनके मतलब ये सब ओपिनियंस चल रहे हैं, एंड विल गेट टू नो इट बाय ट्यूसडे मॉर्निंग और ट्यूसडे इवनिंग, आई डोंट नो व्हेन, बट हमें पता चल जाएगा कि कब तक प्रीमियर लीग पोस्टपोन होने वाला है. बट देन गो ऑन टू द टाइटल कंटेंडरशिप ऑफ प्रीमियर लीग. सो स्पीकिंग अबाउट द टाइटल कंटेंडरशिप इन प्रीमियर लीग, it is interesting, guys. As you all know, Premier League is the toughest league there is in football right now, and it is going very interesting. It is very interesting. You see Man City up top with Liverpool on the second and Chelsea on the third with Arsenal on fourth. See, जो Man City है, we all knew that they will be the contenders this season, but Chelsea were on first till December, but until December के बाद से Chelsea को कुछ हो गया, and Chelsea drew and lost their last 3 matches. So it they dropped points, crucial points, and then Liverpool took off from there. And last match, Tottenham versus Liverpool was a draw for Liverpool, and hence they are on second, with on the first place being none other than Manchester City. But going on to Arsenal, by Arsenal this season are a very different team. You can see Arsenal contending, not contending for the Premier League, but at least they are some competing for the European spot, and we can see this. We can see improvements in Arsenal. West Ham का सब खत्म हो चुका है. अब West Ham वैसे ही नीचे चलने वाले हैं. West Ham का वो जो फॉर्म था, it is gone. But Manchester United will come up
लाइक वेस्ट हैम के ऊपर आ जाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, नो डाउट फॉर इट. So now we go on to our main topic, which is Tottenham versus Liverpool का review. So as you know, Liverpool started. भाई for the first 20 minutes of Liverpool was horrible, and भाई they were lucky to not to be 3-0 down by the time Diego Jota added in the Liverpool's equalizer, because वहां पर बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई अरोज आफ्टर हैरी केन टैकल रॉबर्टसन. वो टैकल अगर देखा जाए, अगर रॉबर्टसन जम नहीं करता ना, वो उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता, कहीं ना कहीं से तो फ्रैक्चर था ही भाई. और भाई एंड विच शुड हैव बीन अ रेड कार्ड इन एनी अदर कंट्री और एनी अदर डे. भाई किसी के लिए भी रेड कार्ड हो सकता है. यू गिव रॉबर्टसन अ रेड कार्ड आफ्टर दैट, वी विल कम टू इट. बट फॉर सम रीजन वी आर डिडंट इवन बॉदर टू गिव इट अ चेक. आई डोंट नो व्हाई कि हम वीआर को यूज करने के मतलब आई डोंट नो व्हाई प्रीमियर लीग रेफरीज आर नॉट यूजिंग वीआर एज मच इट शुड बी यूज्ड. बिकॉज देखो आपके पास पूरा चांस था, यू शुड हैव गॉन टू द वीआर एंड चेक इफ इट इज अ रेड कार्ड और नॉट. बट वो लिवरपूल के मतलब जो रेफरी था वहां पर उन्होंने नहीं किया. भाई क्या ही किया उन्होंने, कुछ रेड कार्ड नहीं दिया एंड ही गॉट अवे, केन गॉट अवे विद इट. बट लिवरपूल लुक लाइक दे वर गेटिंग सम लाइफ बैक आफ्टर अनफॉर्चुनेटली. बट अनफॉर्चुनेटली द फ्लो गॉट इंटरप्टेड एज द विसल ऑफ द हाफ टाइम ब्लो. हाफ टाइम तक मुझे लगा कि ठीक है लिवरपूल अभी आ ही जाएगी. बट लिवरपूल कंटिन्यूड टू बी अनस्टेडी इन द सेकेंड हाफ बट समहाउ गॉट द लीड just before the 78th minute, and thanks to Andy Robertson who combined with his fullback partner to a goal. However, the lead had a brief life, and as a defensive misunderstanding led to Son facing an empty Liverpool net, and net he made sure to rattle with the ball. और सन मिस करेंगे भाई, सन सनाल्डो बन जाते हैं केन के बिना, तो केन के साथ क्या ही खेलेंगे. बट द डेज रेफरी पॉल टियरनी, क्या ही भाई, भगा दो उसे प्रीमियर लीग से. ही इज नॉट भाई, या तो ये सब पैसे खिलाए थे टॉटनहम ने, या तो कुछ हुआ था. बट अब कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो. फॉर न्यूट्रल फैंस अ प्योर एंटरटेनमेंट. You see Liverpool starting 11, Alisson, Trent Alexander-Arnold, then you have Matip, Konate, Robertson, Morton. Young Morton played in that match, and Milner, you had Milner, Keita, Mane, Salah and Jota front. So you see in Liverpool squad, they are literally missing their first team midfielders. They are missing their midfielders, and to play without their midfielders was difficult. And you saw them, वो जो गैप खुल रहे थे बीच में लिवरपूल के, जब भी आप देख रहे थे टॉटनहम को अटैक पर, वो गैप खुल रहे थे. एंड टॉटनहम वर टॉटनहम एक्सप्लॉइटेड लिवरपूल वेरी वेल. भाई कॉन्टेस्ट टैक्टिक वर्क. भाई ये जो ड्रॉ हुआ टॉटनहम के साथ, ये एक ऐसी टीम नहीं है कि एक मिड टेबल टीम है, लोअर टेबल टीम है जो ड्रॉ मतलब बहुत गंदा रिजल्ट माना जाएगा लिवरपूल के. लिवरपूल के सर्कमस्टेंसेस देखते हुए, उनकी इंजरीज देखते हुए, उनके प्लेयर्स जो नहीं खेल रहे हैं उन्हें देखते हुए, इट वॉज अ ग्रेट मैच फॉर लिवरपूल. एंड अगर आप टॉटनहम की बात करें, बट टॉटनहम अंडर कॉन्टे विल बी समथिंग डिफरेंट. यू सॉ डेली अली लाइवली टुडे. मुझे लगा कि यस डेली अली ने बहुत कुछ इंप्रूव किया है, बाकी है इंप्रूव करना. पास्ट क्या बोले, अभी प्राइम कभी आया था उसे, 21 साल का तो था, प्राइम ही क्या बोल सकते हैं उसको. बट डेली अली वर्किंग बैक टू इज बेस्ट. बट हमें वो फ्लैशेस दिखे जो वो टॉटनहम टीम के जो चैंपियंस लीग फाइनल में गए थे. एंड कॉन्टे हैज रियली इंप्रूव दिस टीम. बट जो भी हो टीम अंदर कॉन्टे, भाई कुछ भी बोल लो आप, उसे लीग में तो बेहतर करना ही है. एंड वी सॉ दिस अगेंस्ट लिवरपूल. दे वर एक्सप्लॉइटिंग द स्पेसेस जो मिडफील्ड ने छोड़ रखे थे, एंड बस स्पेसेस में बना रहे थे. उसके बाद देवर क्लिनिकल, देवर नॉट क्लिनिकल इनफ. द ओनली थिंग इज देवर नॉट क्लिनिकल इनफ. केन मिस चांसेस, एंड ऊपर से तो आपके 3-4 गोल तो पहले हाफ में ही चले जाते हैं अगर आप पहले प्रॉपरली अगर आप फिनिश कर लेते तो. बट क्या ही बोल सकते हैं. बट पहला गोल जो केन का गया, प्रॉपर नंबर 9 फिनिश. बट उसके बाद जो रेड कार्ड का सीन हुआ, फिर आई थॉट यहाँ पर से कुछ पलट सकता है. अगर केन को रेड कार्ड मिल जाता है, इफ केन वुड हैव गॉट दैट रेड कार्ड, थिंग्स वुड बी डिफरेंट. थिंग्स वुड बी डिफरेंट लिटरली. लिवरपूल या तो अब टॉप होती थी, ठीक है, लिवरपूल यहाँ से मतलब बहुत अच्छी खेलना चालू कर दी, बिकॉज टॉटनहम आर 10 men down. एंड कॉन्टे लिटरली इम्प्रूव दिस टॉटनहम टीम एंड वर्किंग देम टुगेदर. बट एंडी रॉबर्टसन रेड कार्ड, इट्स ओके, इट्स ओके. मैं मानता हूँ एंडी रॉबर्टसन को रेड कार्ड मिलना चाहिए था. बट वॉट अबाउट द हैरी केन्स रेड कार्ड? डिड यू थिंक ही डिजर्व रेड कार्ड और नॉट? उसके बाद पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोलना, आई डिडंट थिंक आई डिजर्व दैट रेड कार्ड. आई वॉज गोइंग ऑन टू द बॉल, आई गॉट द बॉल, आई थिंक. कैसी जरूरत कर रहे हो भाई, क्या ही बोल रहे हो तुम? तुम्हें क्या, तुम जो बोल रहे हो तुम्हें सुनाई दे रहा है? क्या बोल रहे थे तुम? व्हाट वर यू सेइंग? भाई कुछ भी बोल रहे थे. बट ये रेड कार्ड डिजर्व था. अगर वो रेड कार्ड आ जाता तो कहानी कुछ और होती शायद से, एंड लिवरपूल वुड हैव गॉट देयर लीड एज वेल. बट लिवरपूल ने अपना काम किया, अच्छा किया. और लिवरपूल गोल ना मारे ऐसा नहीं हो सकता. लिवरपूल ने गोल मारे, जैसे कि हमें पता है लिवरपूल आर फेमस फॉर गोल्स, तो उन्होंने मारे. उनकी मिडफील्ड डिस्टॉर्टेड थी तो क्या हुआ भाई,
ठीक है, हो जाता है कभी कभी, उनकी मिडफील्ड नहीं है बिकॉज ऑफ जो भी है इंजरीज या कोविड-19 की वजह से, दे आर नॉट हैविंग द मिडफील्डर्स। बट द यंग मॉर्टन प्लेड अ ब्रिलियंट गेम, ब्रिलियंट गेम मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा, अभी अभी यंग है भाई, टाइम देना पड़ेगा उसे। ही प्लेड अ ब्रिलियंट गेम। देन अ ब्रिलियंट गेम फ्रॉम जोटा, जोटा ने जो मारा था गोल, भाई क्या ही गोल मारा उसने, अच्छा गोल मारा है। मतलब लिवरपूल ने अपना काम कर दिया, काम तो नहीं बोलूंगा कर दे, दे नीडेड अ विन, बट ड्रॉ इज ओके बिकॉज लिवरपूल के प्लेयर्स भी मिस कर रहे थे, और ऊपर से टॉटनहम आर इन गुड फॉर्म राइट नाउ, उनके मैचेस बाकी है फिलहाल तो प्रीमियर लीग में, तो शायद से टॉप 4 में भी आ जाए, जीत जाएंगे तो कॉन्टे में टॉटनहम डिफरेंट हो जाएगी। अब कॉन्टे की टीम जो भी हो, बट जिस टीम को कॉन्टे मैनेज कर रहा है वो डिफरेंट दिखेगी आपको, एंड इट रिफ्लेक्टेड इन टॉटनहम्स प्ले। सो this was the review, guys. Do let me down know in the comments below what are your views on it, and we'll meet you in the next video. Until the next video, goodbye, take care, peace out.